Welcome students of class 6 in a social study period. Today we will complete exercise and question answers of chapter 2nd of geography. Part A. Choose and write the correct option. Number first, the shape of the earth is like dash. Options are square, sphere, rectangle or triangle. Right option is sphere. Second, a metal piece or a pole is fixed through the globe in a tilted manner that is called its dash. Axis, meridian, equator, parallel. Right option is axis. Third, all parts of dash do not receive equal amount of heat from the sun. Moon, South Pole, Earth, freezer zone. Right option is Earth. Turn the page. Fourth, the line opposite to 0 degree is dash longitude 23.5 degree north, 66.5 degree south, 180 degree or 15 degree. Right option is 180 degree. Fifth, the Greenwich meridian and 180 meridian differ by exactly dash hours 360, 90, 180 or 24. Right option is 24. Part B, fill in the blanks. The dash indicate the north direction. Reference point. Second, a dash is a fixed place from which direction or locations can be described. इसमें भी आएगा आपका reference point. Third, the dash is at a angular distance of 66.5 degree north from the equator. Arctic. Fourth, dash zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Right option is torrid. Fifth, the time determined according to the longitude of a place is the dash of that place. इसमें आएगा आपका local time. Sixth, the dash divides the earth into north and the southern hemispheres. Fill in the blanks में भरोगे equator. नेक्स्ट है आपका सी पार्ट. स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको जो आंसर्स हैं वो टिक करवा दूंगी बुक में. ठीक है. फर्स्ट आपका इसमें है गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज ए ग्लोब. शॉर्ट फर्स्ट आंसर आपका है पेज नंबर 17 पे. इसको आपने चैप्टर एट ए ग्लैंस में देखना है. सेकेंड पॉइंट है ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. Question second, define the equator. Second answer is on page number 13. From here, an imaginary lines drawn around the earth exactly midway between the two poles is called the equator. आपको an imaginary line से start करना है और equator तक लिखना है आपको. Question third, what are lines of latitudes? थर्ड आंसर इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 13. ये है आपके लैटिट्यूड वाले हेडिंग में. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन्स दैट रन हॉरिजेंटली अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ. दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज पैरेलल्स. आपने ये आंसर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड से शुरू करना है. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स तक आपको लिखना है. क्वेश्चन फोर्थ, what are meridians of longitudes or meridians? This answer is on page number 14 under the heading longitudes. आपको ये यहाँ से शुरू करना है. These vertical coordinates imaginary semicircles lines running from the north pole to the south pole are called the lines of longitudes or meridian. आपको फिर से बता रही हूँ, दीज वर्टिकल से शुरू करना है और ये मेरिडियंस तक आपको लिखना है. क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट्स, ये आंसर आपको यहीं लिखना है. यहाँ से स्टार्ट करोगे. द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन एक मिनट. द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. फिर से आपको ऐसे लिखना है. द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट पार्ट डी, गिव लॉन्ग आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है
Discuss about the shape of the earth. Also discuss about its polar diameter and equatorial diameters. फर्स्ट लॉन्ग आंसर इज ऑन पेज नंबर 12. ये इस वाले हेडिंग में स्फेरिकल अर्थ में सेकंड पैराग्राफ. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए स्फेयर बट एंड एक्चुअली मेजरमेंट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर. द अर्थ इज स्लैंटिंग ब्लगिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. द ब्लग इज ड्यू टू द centrifugal or outward force caused by the rotation of the earth. This shape is referred to as geoid. Thus the polar diameter of the earth is 44 kilometers shorter than the equatorial diameter, but for all practical purposes we consider the shape of the earth as a sphere. I am लाइक ए बॉल तक लिखना है. फिर से बता रही हूँ, द शेप ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करना है आपको लॉन्ग आंसर फर्स्ट, और लाइक ए बॉल तक लिखना है. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेलल और द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. सेकेंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 14. यहाँ से आपको द पैरेलल ऑफ द लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ठीक है, यहाँ तक ऑल द स्मॉल सर्कल्स 5 पॉइंट्स हैं. आप कोई भी 4 पॉइंट्स कर लेना. द पैरेलल्स ऑफ द लाइन से शुरू करना है और यहाँ तक आपको ऑल स्मॉल सर्कल्स तक लिखना है. थर्ड लॉन्ग आंसर है आपका, व्हाट आर द क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन्स इन डिटेल. थर्ड आंसर भी आपका 14 पेज पे ही है, अंडर द हेडिंग क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट टाइम आपने इसको ऐसे लिखना है, ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, सो दे हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. फिर आपने यहाँ से लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन लाइन्स की हैं वही लिखनी है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हीट जोन्स. नंबर 1 टॉरिड जोन. टॉरिड जोन को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और सन ऑल द ईयर राउंड तक लिखना है आपको. देखो ध्यान से देखो, टॉरिड जोन से आपको टॉरिड जोन में हेडिंग डालना है, इसको अंडरलाइन करके, और फिर स्टार्ट करना है और ईयर राउंड तक लिखना है. सेकंड पॉइंट आपने यहाँ से लिखना है टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन को भी आपने हाईलाइट करना है, मतलब बड़ा थोड़ा हेडिंग डालना है. ठीक है, और इसको आपने यहाँ तक लिखना है, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन तक. थर्ड फ्रीजर जोन है. फ्रीजर जोन को भी आपने पूरा लिखते हुए यहाँ तक नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ तक आपको लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन फोर्थ लॉन्ग आंसर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. फोर्थ लॉन्ग आंसर जो है आपका, ये है आपका पेज नंबर 15 पे. ये जो हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये आपके 5 पॉइंट है, ये आपने लिखने हैं. ठीक है, रिमेन द सेम तक. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट्स, ये सारे पांचों लिखने हैं आप. फिफ्थ लॉन्ग आंसर है आपका, हाउ डू वी फिक्स द लोकल टाइम फॉर ए प्लेस. स्टूडेंट्स फिफ्थ आंसर जो है आपका लॉन्ग फिफ्थ आंसर पेज नंबर 15 पे, अंडर द हेडिंग लोकल टाइम. यहाँ से लिखोगे आप, इफ़ वी सेट आवर वॉचेस से लेके अनदर प्लेसेस तक. यहाँ से इफ़ वी सेट से लेके अनदर प्लेसेस तक. ओके स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज डू exercise and question answers of chapter 2 in geography notebook. Thank you.